ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. یہ سورہ انفال ہے 10واں پارہ. میں نے آیت نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ جیت گئے ہیں. بے شک وہ کافر لوگ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کو جھکا نہیں سکتے. اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور تیاری کرو ان کافروں کے لیے مستطاعتم جتنی تم میں طاقت ہے من قوت سے ومن رباط الخیل اور گھوڑے باندھنے سے ترہبون به عدو اللہ تم اپنی تیاری کے ساتھ اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے، وعدوکم اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈراؤ گے، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. اور فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یوفی الیکم وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. میری محترم اسلامی ماں اور بہنوں، جہاد کی تیاری اور جہاد کی ٹریننگ اس پر شاید پہلے بات ہوئی ہو، لیکن آج میں ایک خاص موضوع پر آپ سے قرآن و حدیث کی روح سے بات کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ہے نشانہ بازی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ کافر ان سے جنگ جیت نہ سکیں، کافر ان پر غالب نہ ہو سکیں، کافر ان پر چڑھائی نہ کر سکیں، اور کافر مسلمانوں سے ڈرتے رہیں، جو کافر اللہ کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں، وہ کافر ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے دشمن یہ ہم سے ڈرتے رہیں اور ہمارے خوف سے کانپتے رہیں اور ہم ان پر ہمیشہ غالب رہیں، کافر ہم پر غالب نہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم تیاری کرو. اور کس چیز سے تیاری کرو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوت تیار کرو، جتنی تم میں طاقت ہے. مستطاعتم کا مطلب ہے کہ اپنی پوری طاقت تم اس راہ میں تیاری کے لیے لگا دو. من قوت پہلی چیز جو ہم نے تیار کرنی ہے وہ قوت تیار کرنی ہے. پھر فرمایا من رباط الخیل اور گھوڑے باندھنے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں آئی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا. آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ انفال کی آیت، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے جتنا ہو سکے قوت تیار کرو. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمی، خبردار قوت وہ نشانہ بازی ہے.
सलासन 3 दफा आपने फरमाया अला खबरदार इन्नल कुव्वत रम्यो, बेशक कुव्वत ये निशानाबाजी है। रम्य रमा यर्मी रिमायतन से मस्तर है, इसका मतलब है दूर से किसी चीज को फेंकना। दूर से जब किसी चीज को फेंका जाए तो इसको रम्य कहते हैं और रिमाया कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कुव्वत तैयार करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुव्वत वो निशानाबाजी है, यानी अगर हम सही और मजबूत कुव्वत और ताकत काफिरों के मुकाबले में तैयार करना चाहती हैं तो वो ये है कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान सब के सब वो निशानाबाजी बेहतरीन जानते हैं। और औरतें, बच्चे, बूढ़े निशानाबाजी जानते हो, ये कुरान और हदीस से हमें कैसे हुक्म मिलता है? एक तो ये हदीस जो मैंने आपके सामने रखी है कि हजरत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही फरमाया अला इन्नल कुव्वत रम्यो, खबरदार कुव्वत से मुराद वो निशानाबाजी। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर कि उक़बा बिन आमिर जो पहली हदीस के रावी बुढ़ापे की उम्र के अंदर जब बूढ़े हो चुके थे तो बड़ी मुश्किल से वो निशाना लगा रहे थे। उनके एक साथी ने कहा ऐ उक़बा, आपको क्या है कि आप इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर इतनी मुश्किल से, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत, आप बुढ़ापे की उम्र के अंदर इतनी मुश्किल से अपने हदफ पर निशाना लगा रहे हैं, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं ये तकलीफ हरगिज़ न उठाता, इस बुढ़ापे के अंदर इतनी निशानाबाजी की मुश्किल मैं बर्दाश्त न करता अगर मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात न सुनी होती। और वो बात क्या थी? आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आलिम रम्य सुम्मा तरकहु फलैसा मिन्ना औ क़द असा, रवाहु मुस्लिम। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रम्य निशानाबाजी सीखी सुम्मा तरकहु, फिर उसको छोड़ दिया, फलैसा मिन्ना, बस ये छोड़ना ये इस्लाम का, मुसलमानों का, अल्लाह और उसके रसूल का काम नहीं है। या फरमाया औ क़द असा, उसने नाफरमानी की। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानाबाजी सीख कर उसको छोड़ देने को, उसको तर्क कर देने को कितना बुरा ख्याल कर रहे हैं। कहते फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, यानी ये काम मुसलमानों का नहीं। और साहबी फरमाते हैं या आपने फरमाया औ क़द असा, उसने नाफरमानी की। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, निशानाबाजी करना और अपनी औलाद को और अपने बच्चों को और अपने जवानों को निशानाबाजी पर तैयार करना, इसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरमू वरकबू, निशानाबाजी करो और घुड़सवारी करो, व अंतरमू, और तुम निशानाबाजी करो, अहब्बु इलैया, ये मुझे ज्यादा पसंद है, मिन अंतरकबू, इस बात से कि तुम घुड़सवारी करो। निशानाबाजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानाबाजी भी पसंद है, घुड़सवारी भी पसंद है, लेकिन निशानाबाजी ये घुड़सवारी से भी ज्यादा पसंद है। और हदीस शरीफ में आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सतुफ्तहु अलैकुमुर रूम, क्या मेरे सहाबा तुम पर रूम जो ईसाइयों का मरकज है, सतुफ्ता, ये खोल दिया जाएगा, इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तुम अनकरीब रूम पर फतह पाओगे। वसयक्फीकहुमुल्लाह, और इन रूमियों के खिलाफ अल्लाह तुम्हें काफी हो जाएगा। अब करना क्या है? साथ ही फरमाया फला याजिज
अहदुकुम अन यल्हुवा बिअस्हुमे, अगर तुम रूमियों पर फतह पाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम रूमियों पर गालिब आ जाओ, फरमाया फला यअजिज अहदुकुम अन यल्हुवा बिअस्हुमे, तुम में से कोई इस बात से आजिज ना आए, इस बात से इनकारी ना हो, इस बात से थके नहीं, इस बात से अन यल्हुवा बिअस्हुमे कि वो अपने तीरों के साथ खेले, वो अपने तीरों के साथ निशानाबाजी करे, वो अपने तीरों के साथ खेले, इस बात से कोई आजिज ना आए। यानी फतह और नुसरत हासिल करने के लिए और अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए जरूरी है कि मुसलमान वो निशानाबाजी करते रहें और इससे थके नहीं, क्योंकि एक ही काम बार बार करके ना तो फिर जो बोलने जाते वो भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, का ये तो पूरी है ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानाबाजी कितनी पसंद थी, सुभान अल्लाह। देखिए सहाबी फरमाते हैं, खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन औ कमा क़ाल, हम पर एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो हम सहाबा किराम क्या कर रहे थे। सहाबी कहते हैं, सहाबा किराम कानू यतनाज़लून फिस्सूक, सहाबा किराम मदीने के बाजार के अंदर, मदीने की गली के अंदर यतनाज़लूना तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे थे। यतनाज़लून निशानाबाजी का मुकाबला कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, उनको देखकर खुश होते हैं और फरमाते हैं, इर्मू बनी इस्माइला फइन्न अबाकुम कान रामिया, खुश होकर फरमाते हैं, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटो, इर्मू निशानाबाजी करो, फइन्न अबाकुम, बस बेशक तुम्हारा बाप यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम कान रामियन, बड़े जबरदस्त निशानाबाज। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए गालिबन दूसरी मर्तबा, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम वो एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने तीर घड़ रहे थे। और आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ये तीर घड़ा करते थे और उससे शिकार किया करते थे और गोश्त खाया करते थे। तो इस बात की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तवज्जो दिलाई कि इर्मू बनी इस्माइल, ऐ इस्माइल के बेटो, इर्मू निशानाबाजी करो, तुम्हारा बाप बड़ा निशानाबाज था। और आपने फरमाया, वह अना माअबनी फुलानी, मैं फुला कबीले के साथ मिलकर इस मुकाबले में शिरकत करूंगा। सहाबी कहते हैं, सहाबा किराम ने हाथ रोक लिए, निशानाबाजी रुक गई, मुकाबला सर्द पड़ गया। तो आपने फरमाया कि भी यार सहाबा, ऐ मेरे साथियों, मालको, क्या है तुम्हें, तुम निशानाबाजी नहीं कर रहे और मुकाबला नहीं जारी रखते। तो सहाबा किराम फरमाने लगे, हम कैसे निशाना लगाएं, आप फलां कबीले के साथ शामिल हो गए हैं, अब आपका मुकाबला करते हुए तो हमें शर्म आती। आपने जब अपने सहाबा का ये हाल देखा तो आपने कहा, इर्मू, तुम निशानाबाजी करो, मैं तुम सब के साथ हूं, यानी मैं तुम दोनों टीमों के साथ हूं, तुम दोनों टीमें मिलकर निशानाबाजी करो। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजारों के अंदर सहाबा इकराम को निशानाबाजी के मुकाबले करवाया करते थे और उनमें खुद भी शिरकत करते थे। लेकिन आज हमारे माशरे का हाल क्या है? आज किसी के हाथ में कैरम है, वो कैरम की गोटियों के साथ निशाने लगा रहा है। किसी के हाथ में स्नोकर का डंडा है और वो स्नोकर की गेंद को निशाने लगा रहा है। किसी के हाथ में फुटबॉल का बैट है, क्रिकेट का बैट है और वो क्रिकेट की गेंद को निशाने लगा रहा है। कोई क्रिकेट की गेंद से बाउलिंग करा रहा है कि मैं इसकी विकेट गिरा लूं। किसी के हाथ में हॉकी है और वो उस गेंद को निशाने लगा रहा है। किसी के हाथ में पांव में फुटबॉल है और वो फुटबॉल को निशाने लगा रहा है। ये सारी चीजें
काफिरों ने इन पर इतना खर्च किया। देख लीजिए फुटबॉल के मुकाबलों पर, आदमी मुकाबलों पर काफिर कितना खर्च करते हैं, क्रिकेट के आदमी मुकाबलों पर कितना खर्च करते हैं, क्रिकेट की टीमों पर, फिर उनके बाकायदा मैचों पर, उनके नाज नखरों पर, फिर उनको दिखाने के लिए बाकायदा सैयारों के जरिए, मसनूई सैयारों के जरिए पूरी दुनिया में इंतजाम किया जाता है, सिर्फ किस लिए कि मुसलमान जो उनका असल खेल है, जो उनका असल काम है कि निशानाबाजी सीखी जाए, साफ साफ कर निशाने लगाए जाए, ताकि मैदान के अंदर किसी काफिर की गर्दन मुसलमान के हाथ से बच न सके, मुसलमान इस काम से दूर हो जाए। और इन मुकाबलों के अंदर फिर फहाशी आम की जाती है, बेपर्दगी आम की जाती है, उरियानी आम की जाती है, गाने आम किए जाते हैं और शिरक आम किया जाता है। देखिए जब ओलंपिक्स के मुकाबले होते हैं, जो दुनिया के अंदर खेलों के सबसे बड़े मुकाबले, तो एक मशल आपकी वो यूनान से चलती है, यूनान से, और दुनिया में जिस जगह पर भी ओलंपिक्स के मुकाबले होते हैं तो ओलंपिक की मशल को यूनान की उस मशल से जलाया जाता है और पूरे मुकाबलों के दौरान ये मशल आग की ये जलती रहती। ये यूनानियों आपके प्रस्तारों, आपकी परस्तिश करने वालों का, मजूसियों का ये अकीदा है कि वो आग को पूजते। हजरत सलमान फारसी का बाप भी आग को पूजने वाला था, वो आग से मनते मानते थे और आग की पूजा करते थे। ये वो आग की पूजा करने वाले इन खेलों के जरिए मुसलमानों को आग की पूजा करवा रहे हैं कि जब खेलें आर्मी शुरू होती हैं उनसे पहले मस्जिद जलाई जाती है और आग भड़काई जाती है और उस आग के साए के अंदर मुसलमान जो है और काफिर भी मिलकर वो आलमी खेलों के मुकाबले करते हैं। ये मुसलमानों को शिरक सिखाया जाता है और इसके साथ फिर मुसलमानों के अंदर गंदगी फैलाई जाती है। उस टीवी पर काफिरों की औरतें बेपर्दा दिखा दिखाकर और उनके डांस और उनके गाने बेपर्दा दिखा दिखाकर इन खेलों की आड़ में मुसलमानों को गंदा किया जाता है, उनके ईमान को, उनके दिलों को, उनके जहनों को गंदा किया जाता है। इन सब बातों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बचने का हुक्म दिया। और देखिए बाजारों के अंदर जहां हमारी नौजवान नस्ल वीडियो गेम के जरिए और मुख्तलिफ खेलों के जरिए तबाह हो रही है, कैरम पर जुए लग रहे हैं, स्नूकर पर जुए लग रहे हैं, हाथ वाली फुटबॉल गेम में आई है उन पर जुए लग रहे हैं, बाजारों के अंदर मुसलमान बच्चे तबाह हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों के अंदर सहाबा किराम से निशानाबाजी करवाया करते थे। यही वजह है कि जब बादशाह ईरान के दरबार के अंदर ये मामला पेश हुआ कि क्या बात है कि जब मुसलमानों के साथ हमारे फारसियों का मुकाबला होता है, मुसलमान थोड़े होते हैं, फारसी बहुत ज्यादा होते हैं, मुसलमान कमजोर हैं, फारसी हटे कटे हैं, मुसलमानों के हथियार थोड़े हैं, फारसियों के हथियार बड़े जबरदस्त होते हैं, लेकिन फारसी फौजें मुसलमानों के सामने ठहर नहीं सकती। उस वक्त एक तजजिया करने वाले ने तजजिया किया, उसने कहा मुसलमान ये बुराइयों से बचते हैं, जबकि अब बादशाह तेरी फौज बुराइयों से नहीं बचती। मुसलमान रात को अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, दिन को घोड़ों पर होते हैं, बादशाह तेरी फौज रात को डांस और शराब में गुजारती है, दिन को ये क्या जान लड़ सकती है। उसने कहा बादशाह मुसलमानों की इतनी तैयारी है और इतनी ट्रेनिंग है कि ये भागते हुए घोड़े से तीर मारते हैं और इनका निशाना चूकता नहीं है, इस फौज का कौन मुकाबला कर सकता है। तो आज देखिए कि मुसलमान वो निशानाबाजी सीखने की बजाय कि वो घर में पिस्टल रखें, वो घर में कलाशनकोव रखें, उसका लाइसेंस बनवाएं और इस तरह की दूसरी गनें रखें और उनके घर में टारगेट हो और वो टारगेटों को बाजार में रखकर, मैदान में रखकर निशानाबाजी के मुकाबले करें। इसकी बजाय आज हमारे घरों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों के खेलों की मशीनें हैं, खेलों के औजार हैं, घरों के अंदर महंगी महंगी तरीन खेलों का वालदैन बंदोबस्त करते हैं, टीवी का बंदोबस्त करते हैं, वीडियो गेमों का बंदोबस्त करते हैं, कंप्यूटर गेमों का बंदोबस्त करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे इन खेलों में लगे रहे। हालांकि मुसलमान का बच्चा उसको अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसको निशाना बाजी करवानी चाहिए, उसको छोटा मोटा हथियार खरीद के देना चाहिए। आज देखिए मैं हैरान होता हूँ काफिरों की तरक्की पर कि काफिरों ने जहां तो हथियार ईजाद किए हैं बड़ों की निशानाबाजी के लिए। हाल ही में चाइना के छोटे छोटे खिलौने बिल्कुल क्लाशन और पिस्तौल की मिसल, और उनमें बाकायदा मैगजीन में गोली पड़ती है, वो छोटा सा अंडा पड़ता है और उसको बस लोड करना होता है हर बार, और वो अंडा बिल्कुल 10 फुट पर बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। तो हमें इन छोटे छोटे हथियारों से खुद भी निशानाबाजी करनी चाहिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को निशाना सिखाना चाहिए। हमने जाने में निशानाबाजी की क्लास शुरू की तो वहां मसला हुआ छोटे बच्चों में, बिल्कुल 10 साल के बच्चे हैं वो गन उठा नहीं सकते, तो हमने वो चाइना की गनें खरीदी हैं छोटी छोटी, बेहतरीन वो निशाना लगाती हैं। अल्लाह के फजल से जामिया के अंदर बेहतरीन निशानाबाजी का बंदोबस्त। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, बल्कि आपका हुक्म और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए तमाम दूसरी खेलें छोड़नी चाहिए, और ये खेलें जो इस्लामी खेलें हैं इनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैं आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। ये हदीस नसाई शरीफ में है, अबू दाऊद में है, सुनन तिरमिजी जामे तिरमिजी में है, और सुनन इब्ने माजा में है, और मुस्नद अहमद में। इसकी सनद तो इलामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब सिलसिला अहादीस सहीहा में इसकी सनद को उन्होंने सही कहा। हदीस ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मा यलहु बिहिर रजुलुल मुस्लिम, हर वो चीज जिसके साथ मुसलमान बंदा वो खेलता है, बातिलुन, वो बातिल है, इल्ला रमियहु बेकाऊ से, मगर उसका अपनी कमान के साथ निशानाबाजी करना, और तअदीबहु फरसहु, या उसका अपने घोड़े को ट्रेनिंग करवाना, घोड़े की पीठ पर बैठकर घोड़े को सवारी करवाना, ट्रेनिंग करवाना, घोड़े को मशाक तैयार करना, और मुलाबतहु इमरातहु, या अपने घर वालों के साथ खेलना। और एक हदीस में लफ्ज है सिपाहा, तैराकी का, तैराकी करना। ये 4 चीजें आपने फरमाया ये खेल खेलना फइन्नहुन्ना मिनल हक़्क़ि, ये हक में से है, और बाकी जो खेल मुसलमान आदमी खेलता है वो बातिल। तो देखिए इन सब खेलों पर गौर कीजिए, ये सारे के सारे जिहादी खेल, तैराकी जिहादी खेल है, घोड़सवारी जिहादी खेल है, निशानाबाजी जिहादी खेल। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने घरों के अंदर और हमारी बीवियों को खुद सही तौर पर निशानाबाजी सीखने और अपने इलाकों को सही तौर पर सिखाने की तौफीक अता फरमाए, और हम निशानाबाजी को अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझकर सीखें और इसकी फजीलत समझकर सीखें। एक हदीस सुनाता हूँ फजीलत में, सही हदीस है कि एक तीर के बदले 3 आदमियों को सवाब मिलता है। एक तीर या एक गोली या एक निशाना जो आदमी लगाता है उसके बदले 3 आदमियों को सवाब मिलता है। एक उसको बनाने वाला सवाब की नीयत से, एक उसको पहुंचाने वाला सवाब की नीयत से खरीद कर या जैसे भी, और एक उसको चलाने वाला। इन तीनों आदमियों को एक तीर जो चलता है, ये तीनों आदमी उस तीर के चलाने में सवाब में बराबर के शरीक होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक।